हेलो गुड इवनिंग एवरीवन एंड अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीएसआई के इस बाई वीकली सेशन में। और आज की हमारी सीरीज़ है कैंसर अवेयरनेस सेशन, जिसमें हमारे स्पीकर्स वो होते हैं जिनको आइदर डॉक्टर्स होते हैं या हेल्थ केयर के बारे में जिनको काफ़ी जानकारी होती है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा। और आई मीन आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस हर, बट उससे पहले हम लोग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। मेहुल, ओवर टू यू, यू कैन इंट्रोड्यूस एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस डॉक्टर रेखा एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। Yeah. Okay. I hope everyone can see the screen. I'm just sharing it, and this is a short introduction of the group and what we do. So hold on. Hello and welcome to Cancer Survivors in India. Being a survivor is not just a badge of honor; it's a responsibility, one that comes with the privilege of supporting others on their journey. This group is a safe and empowering space for cancer patients, caregivers, and survivors to connect, share, and uplift one another through interaction and shared experiences. Our mission is simple: to protect and empower. Here, you'll find support, guidance, and motivation from those who understand this journey deeply. This group is enriched by the presence of doctors and experts who generously offer their time to answer questions, provide guidance, and help members navigate the challenges of cancer treatment. Survivors and caregivers share their personal experiences, inspiring hope and resilience for those who are just beginning their battle. We host regular sessions where survivors share their stories, doctors address questions, and free yoga and spiritual sessions are conducted to promote physical and mental well-being. Our dedicated admins Piyush, Savita, Swapnil, and Mehul ensure this group remains a safe space. We monitor conversations closely to prevent misinformation, protect against fraud, and ensure members receive accurate, reliable advice. In 2021, we extended our initiative by founding CLASP, a registered Ingo that raises funds exclusively through donations. These funds provide financial assistance to cancer patients who lack the resources to access treatment. Since its inception, CLASP has supported hundreds of individuals in their fight against cancer. If you or someone you know needs support or can benefit from being a part of this community, we warmly welcome you. Together, as a group, we can stand strong and defeat cancer. Join us and let's make a difference together. Thank you, everyone. I hope this was a good way of introducing the group. And yes, Savita, on to you. Yeah. So we would be making some changes and enhancement, and we were just thinking rather than just making it autonomous, let's do something extra to introduce about the group. So that was just a trial, and we'll keep improving that. Thank you, Mehul. And so in short, again, this is the platform, and before starting, we would like to appeal everyone, whoever is listening now or later on, कि आप अगर किसी भी तरह से किसी भी पेशेंट या उनके केयर गिवर को हेल्प करना चाहते हैं, देर आर सो मैनी वेज। इट्स नॉट जस्ट फिनेंशियल, ऑफ कोर्स फाइनेंसेस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारा इसमें स्ट्रेन पड़ता है फैमिली पे, बट देर आर अदर वेज ऑल्सो। यू कैन join us in work as a volunteer in a medical department if you have anything like which you feel can be shared. ऑफ कोर्स एवरीवन नो कि बहुत सारी चीज़ें, इमोशनल सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत हम लोग अपील करेंगे कि किसी भी तरह से आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हेल्प करें, बी अ वॉलंटियर और बी अवर स्पीकर, इंस्पायर अदर बाय शेयरिंग योर स्टोरी। दैट्स अबाउट इट। एंड अभी ज़्यादा समय न लेते हुए I'll talk about Dr. Rekha. And Dr. Rekha is not someone who is on this platform for the first time. पहले भी हमारा एक उनके साथ सेशन हुआ है जो लोगों ने काफ़ी उनको सराहा है, पसंद किया है, एंड इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड बेस्ड ऑन दोज फीडबैक्स इट्स अनदर सेशन विद डॉक्टर रेखा. So Dr. Rekha Arya is MBBS MD from Sarojini Naidu Medical College in Agra, and in medical field she has more than 12 years of experience in the oncology field, and she has worked at Maulana Azad Medical College in Delhi and in many corporate hospitals. And currently, she's practicing in Delhi NCR, which is a good news for people who are in NCR. I mean, that will be very helpful. And in NCR as a senior consultant in Yashodha Cancer Hospital with expertise in head and neck cancer, brain cancer, breast cancer, lung cancer,
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, तो मल्टी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी है डॉक्टर रेखा की. शी इज़ द ओनर ऑफ हेल्दी वेव क्लिनिक एट दिल्ली NCR इंदिरापुरम. She is also director of Wings Cancer Foundation and she is very much dedicated and बहुत सारे उनके वीडियोस अवेलेबल हैं उनके खुद के, जो उनका खुद का इंस्टाग्राम पेज है, एंड शी वर्क्स अ लॉट इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस एंड शी ऑल्सो है आई थिंक इंक्लूडिंग कैंसर स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन, बाकी सारी स्पेशलिटीज़ में भी शी इज़ वर्किंग वेरी डेडिकेटेडली. I think there are too many things, Dr. Rekha. I mean, I will also take this opportunity in case you would like to highlight something very specific areas where you are working. And उसके बाद में हम लोग will start the session. We'll take questions from the Facebook which are already posted and people who are available here. आप लोग hands up का जो emoji रहता है उसको use कर सकते हैं, and one by one I will call the name. And you can unmute yourself, ask the questions to Dr. Rekha yourself, and just be mindful that everybody get their chance, and let's try and avoid to ask too many details on the sessions. Okay. Yeah, Dr. Rekha, over to you. Yeah, and one thing, and I'd also like to मतलब डॉक्टर रेखा, अगर आप हिंदी में अगर बताए तो मतलब आपकी इसका रीच ज्यादा होगा, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि इंग्लिश हमको तकलीफ होती है, तो या लेट्स हिंदी में. मुझे भी थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है हिंदी बात करने, बट एनीवे थैंक यू. हिंदी में मिक्स कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स मेडिकल के जो टर्म्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जहाँ पे भी आपको लगता है कि इट विल मेक मोर सेंस टू पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाए, सो इट्स लाइक ऑल योर कंफर्ट. या यस डॉक्टर रेखा. Thank you, Savita ji, for such a lovely introduction. And no doubt, Mehul ji, I also नहीं हिंदी में बोलती हूँ, मुझे भी हिंदी में समझाना, बात करना, अवेयरनेस देना बहुत पसंद है, राइट? क्योंकि इट इज अ वेरी कंफर्टेबल लैंग्वेज. एंड नो डाउट, जैसे कि सविता जी ने बोला कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनकी हिंदी पता नहीं होती है, कि समझ नहीं आता कि कैसे बताना है, तो उनको डेफिनेटली आई विल talk in English, but I will try to explain everything in a very easy way or very understanding way. So, Sabita ji, let's take questions and then we will start explaining. Yeah, of course. Sure. I mean, we can directly jump on the questions. तो हमारे questions की list, just give me a moment. पल्लवी खन्ना. हाँ, पल्लवी खन्ना. So yeah, I think she's there. If you're there, Pallavi Khanna, please unmute. yeah. I mean, if any of you who's already, I mean, Pallavi Khanna, I mean, is the first one who posted this question. I mean, of course, I can ask behalf of her, but if Pallavi, you would like to ask directly, yeah. Yeah, thanks everyone, and thank you, Dr. Rekha, for giving your time and the entire team of cancer survivors. My question is, Dr. Rekha, is there any I don't know, medical field में ऐसा कोई enhancement है जिसमें कि ये पता चल सके कि what is the best, I mean, एक standard treatments तो है, but what's the best for a specific individual? Because we hear कि every individual is different, and the reaction of every medicine, every treatment is different on every individual. So some may react to something, some may not react. So is there any way to know what is the best option to choose? That is, specifically if the doctor has given you multiple things and you have left the decision on you, तो आप उसमें क्या suggest करते हैं? ओके, सो बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा ना कोई कस्टमाइज ट्रीटमेंट नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर के लिए हम ये बोले कि ये बेस्ट है, क्योंकि ये सारी इंटरनेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द stage, according to the primary side, what is the diagnosis, what is the stage, what is the age of patient. So these all are standard guideline. बट क्या होता है कि जैसे कि हमने स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो की, ठीक है, अब पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं आ रहा या पेशेंट की डिजीज कम होने की बजाय वो बढ़ रही है, तो उन केसेस में हम सेकंड लाइन स्विच करते हैं. ये ना प्रॉपर एक गाइडलाइंस होती है, लाइंस होती हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज दिस, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज दिस. इन दिस
diagnosis in this stage, right? So when patient जब उनको response नहीं करते हैं तो हम line switch करते हैं. बट जैसे कि आपने बोला कि आपको जब choices दी जाती है ना, तो उसमें ना वो उन सिचुएशन में किया जाता है जब पेशेंट का स्टेज बहुत एडवांस होता है और हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं कि हम इसमें ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, एंड रिजल्ट्स आर सेम. तो उन सिचुएशन में हम ये असेस करते हैं कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट करना बेस्ट होगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, 70-year-old मेल जिसको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, लेकिन T1 टंग का कैंसर है, तो आइडियल जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज सर्जरी. बट क्योंकि पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है, राइट, पेशेंट की एज 70 ईयर है, बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनका पीएसी टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा, उनको कार्डियक इश्यूज हैं, तो उनकी सर्जरी हो ही नहीं सकती. तो ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि नाउ यू हैव अनदर ऑप्शन ऑफ द रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी, क्योंकि उस स्टेज में कीमोथेरेपी भी नहीं दी जा सकती, तो ओनली रेडिएशन. तो ऐसी सिचुएशन में डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं. बट हमेशा आपको ये बताया जाएगा कि ये मेन ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है. कभी भी कोई भी डॉक्टर अपनी मर्जी से, पेशेंट की मर्जी से, फैमिली मेंबर्स की मर्जी से ट्रीटमेंट नहीं शुरू करेगा. लोग आजकल माल प्रैक्टिस कर रहे हैं. मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए कि जो मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल ना बहुत बाजारबाद हो चुका है. लोग क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ ये पेशेंट हमारे पास आया, हमारे पास अब कहीं नहीं जानी चाहिए, और उनके पास वो सुविधा है नहीं, तो जो उनके पास सुविधा होती है वो उसको वो ऑफर कर देते हैं. ठीक है, आजकल लोग ना खुल के भी डिस्कस नहीं करते हैं. इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी किसी को कभी भी कैंसर डायग्नोज हो, प्लीज 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 ऑलवेज टेक सेकंड ओपिनियन फ्रॉम ए ऑथेंटिकेटेड सेंटर लाइक एम्स, टाटा, या अगर आप आउट ऑफ इंडिया अगर सेकंड कंसल्टेशन ले सकते हैं तो वो लीजिए. फिर आपने जब सेकंड ओपिनियन ले लिया और आपके जो प्राइमरी डॉक्टर हैं उनका मैच कर रहा है, देन गो फॉर द ट्रीटमेंट, राइट. तो बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, सही से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते हैं, ये होता है. इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ना बहुत कंफ्यूज है कि भाई क्या ट्रीटमेंट हम लें. लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आइडियली जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो गाइडलाइंस होती हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं, और प्रॉपर जैसे कि अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस फॉलो करनी है या एनसीसीएन गाइडलाइन फॉलो करनी है, वो गाइडलाइंस ऑलरेडी लाखों लोगों पे ट्रायल के बाद बनी है. तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं. तो ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोले कि किसी की चॉइस से ट्रीटमेंट होगा या आपके लिए कौन सा बेस्ट है हम वो लेंगे, क्योंकि ये तो वाली चीज हो गई ना कि हम सब्जी थोड़ी ना बेच रहे हैं कि भाई आपको जो पसंद है आप वो ले लो. नहीं, ये गाइडलाइंस हैं, वी हैव टू फॉलो दैट. तो आई थिंक मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया. होप सो आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है. नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच. बट जैसे मेरा क्वेश्चन एक्चुअली हाँ. था, जैसे कहीं हमें गाइड किया गया किसी ने कि लिक्विड बायोप्सी होती है, तो बट जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता. तो उस केस में वेयर डज वन गो? जैसे आपने कहा कि you go to your primary doctor and then take a second opinion. Now if there's a difference of opinion, the second opinion we have taken is saying go for liquid biopsy, there's something called an RGCC test, etc. Now primary doctor says aisa kuch nahi hai, nothing that's that's as per the book. हाँ, आई गॉट योर पॉइंट. एक्चुअली क्या होता है ना, देखो लोगों को ना सिग्निफिकेंस और इंडिकेशन नहीं पता. लिक्विड बायोप्सी होती है, बट लिक्विड बायोप्सी इज नॉट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर. लिक्विड बायोप्सी का यूज हम करते हैं पेशेंट के फॉलो अप में. और इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं बताती हूँ. इसमें ना सैंपल लेते हैं और हम जो कैंसर सेल्स ब्लड में होती हैं उनका डीएनए डिटेक्ट करते हैं या कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं. बट दैट इज फॉर ओनली इन फॉलो अप केसेस, जब पेशेंट कैंसर फ्री हो गए हैं और फॉलो अप में है, कहीं पे सस्पिशन आ रहा है, बट रेडियोलॉजिकल इमेजेस में लाइक पैट सीटी एमआरआई में बीमारी नहीं पता चल रही, तो लोग लिक्विड बायोप्सी एडवाइस करते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया में लिक्विड बायोप्सी आज की डेट में अभी इतना ज्यादा अप्रूव्ड नहीं है, लोग नहीं कर रहे हैं. बट कुछ ही हायर सेंटर में उनको अप्लाई किया जा रहा है for very critical cases, very rare cases, but it is not a routine test.
तो मैं आपके उस डॉक्टर के फेवर में जाऊंगी जिन्होंने ये बोला है कि हाँ लिक्विड जैसी बायोप्सी नहीं कुछ ऐसा है लेकिन अभी अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हमारे इंडियन कल्चर में अप्रूव्ड नहीं है। एक्चुअली ना मैं यहाँ पे ये भी बात बताना चाहती हूँ कि लोगों ने ना बहुत कंफ्यूज कर रखा है। जैसे कि लोग जब इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं ना आजकल, तो यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कैंसर के बारे में बात करते हैं, जो कि इस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कैंसर के बारे में धड़ल्ले से बोलते हैं, और वो एक चीज पकड़ लेते हैं और उसको ना जर्नलाइज करके बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं भी रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है, उसके मतलब लाइक अराउंड 20 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं। वो कैंसर के बारे में पढ़ाना शुरू करता है। पता है उसने इन द एंड सारा जो फोकस था कार्ड सी टी सेल थेरेपी पे था। अब इंडिया में कार्ड टी सेल जो थेरेपी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के ब्लड कैंसर के लिए एप्लीकेबल है, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट जनरलाइज्ड। तो अब मैं तो मेडिकल फील्ड से हूँ, बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, वो उसको सुनेगा तो वो 100% ये सोचेगा कि मुझे ये थेरेपी लेनी है मेरे कैंसर के लिए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उसने उस वीडियो में इतनी ज्यादा इतनी अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे दी कि लोग उससे कन्विंस हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ है आज की डेट में कि कोई कुछ भी बोल रहा है। मैंने बोला कि कार्ड टी सेल थेरेपी है, बट वो सिर्फ एक टाइप के ब्लड कैंसर के लिए है। अब ब्लड कैंसर ही हजारों तरह के होते हैं, राइट? बट उसने जो वीडियो बनाया वो उसने जर्नल वर्ड यूज किया, कैंसर के ट्रीटमेंट में आ गई है चमत्कारी ट्रीटमेंट जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो लोगों को लगेगा अरे भाई कौन सा ट्रीटमेंट आ गया। तो आजकल लोग ना बहुत मिसगाइड कर रहे हैं। लिक्विड बायोप्सी है नो डाउट, बट जैसे कि मैंने बताया कि वो फॉलो अप वाले केसेस के लिए यूज होती है, वो भी बहुत बहुत ही क्रिटिकल केसेस होते हैं उनके लिए। कार्ड टी सेल थेरेपी है बट सभी तरह के कैंसर्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर वन टाइप ऑफ कैंसर। जीन थेरेपीज आ गई हैं, बट वो भी अभी अंडर ट्रायल हैं। बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेशन या एप्लीकेशन अभी उनका हमारी इंडिया में नहीं है। तो ये चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं। इसीलिए you, ये सारी अवेयरनेस सेशन की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग सुन के समझ के ब्लाइंडली भी ना फॉलो करें, उसके बारे में रिसर्च करें, अपने डॉक्टर से बात करें। आई थिंक डॉक्टर इज़ द फर्स्ट पर्सन जो उनको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं उन चीज़ों को समझने में। एंड ऑफ कोर्स ये जो सेकंड थर्ड ओपिनियन, एंड दिस विल आल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉक्टर। ओके, आई होप इट अभी हेल्प। सबिता जी मैं एक बात बताती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं अपना इतना कंटेंट डालती हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो मेरा पर्पस वही है कि लोगों को ना एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये होता है कि लोग क्या सुनना चाहते हो, तो आप ना स्क्रॉल करते हो कि क्या लोग ज्यादा देख रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। तो जब मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे एक वीडियो दिखा, गुड न्यूज इन इंडिया, देयर इज ए गुड न्यूज फॉर कैंसर पेशेंट, देयर इज ए 100% ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। तो उसके व्यूज बहुत अच्छे थे, मैंने उसको क्लिक कर दिया। मैंने कहा मैं देखती हूँ कौन सा आ गया जो मुझे नहीं पता है। इन दी एंड मुझे ये पता चला कि वो एक टाइप का स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहा था। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हर कैंसर के लिए नहीं है। लोगों को ना ये चीज समझ नहीं आती है। अगर मैं कहूँ हजारों तरह के कैंसर्स हैं, तो हजारों तरह के कैंसर्स में ओनली 5 तरह के कैंसर्स के लिए वो ट्रीटमेंट होगा, बट वो जर्नल बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली। बहुत बड़ी गड़बड़ है। जी जी, थैंक्स। नेक्स्ट हम शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, आपके जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द डायग्नोसिस एंड एवरीथिंग आई एम जस्ट पोस्टिंग इन द चैट फॉर डॉक्टर्स रेफरेंस, बट यू कैन इनिशिएट एंड यू कैन टॉक। आई थिंक इनकी वाइफ से रिलेटेड है। यू कैन ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। या, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सॉरी डॉक्टर रेखा, मेरा क्वेश्चन शायद आपने देखा होगा, मैंने भेजा था। यस, जो ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड था। जी हाँ, वो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, क्योंकि ओवेरियन भी जैसे आपने भी कहा कि कोई एक कैंसर एक जैसा, एक ब्लड कैंसर एक नहीं होता, तो ओवेरियन भी हाँ, एक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सो इन माय केस, माय वाइफ्स केस, इट इज हम्म granulosa cell tumor, which is a very rare tumor, a very rare ovarian cancer. हम्म इसकी एक्सपेक्टेशन ये थी, 2 साल पहले ये डायग्नोज हुआ था, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं अब, 2022 में हुआ था।
ओके। और अर्ली 2022 में। और उस वक्त जब सर्जरी की इन मई 2022, तो it was my first impression that I got was that it turned out to be benign, because उन्होंने जो थी ना फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी की थी। तो डॉक्टर ने सर्जरी के बाद मुझे फोन पे कहा, बिकॉज आई वाज सिटिंग इन द वेटिंग रूम, एंड द सर्जन ने वहां से फोन किया मुझे ऑपरेटिंग थिएटर से after the surgery कि everything is good, we took it out, the whole thing, it was quite big, 3 लीटर उसमें से फ्लूइड निकला था उसमें से, मगर कोई भी चीज इम्प्लीकेट नहीं हुई थी, कोई पेरिटोनियम में इम्प्लीकेट नहीं हुआ था, और कोई उन्होंने लिम्फ नोड्स नहीं निकालने उनको जरूरत पड़ी, फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी केम नेगेटिव, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सो ठीक है। पर लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि एक्चुअली ये इम्प्रेशन मेरा इतना एक्यूरेट नहीं था, या तो मैंने ठीक सुना नहीं या उन्होंने क्या बताया मुझे पता नहीं। इट टर्न्स आउट कि कैंसर था, इट वाज व्हाट यू कॉल ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। और लेटर ऑन फॉलो अप मीटिंग में जब सीनियर सर्जन से बात हो रही थी, सर नो इट वाज कैंसर, वी डिडंट से इट इज बेनाइन, इट वाज कैंसर, बट इट इज अ लो ग्रेड कैंसर और वेरी स्लो ग्रोइंग है, तो इसलिए हमें करना कुछ नहीं है, वेट एंड वॉच करेंगे। फिर सर्जरी के बाद नो ट्रीटमेंट। एक्सपेक्टेशन थी कि दिस विल कम बैक इन 5 to 10 years, ऐसा भी होता है, तो स्लो ग्रोइंग आएगा तब देखेंगे उसको। इसलिए हम हर 6 महीने में स्कैन करते रहेंगे। फिर वो स्कैन भी उन्होंने लास्ट ईयर 1 ईयर का कर दिया, लेकिन इस बीच में उन्होंने अल्ट्रासाउंड पे ले आया कि 6 महीने में अल्ट्रासाउंड, 1 साल में सीटी स्कैन। अब उसमें भी गलती इस वक्त हाइंडसाइट इज 2020, मैं डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर ये था कि जो स्कैन कर रहे थे पेल्विक स्कैन कर रहे थे, तो पेल्विक स्कैन में तो कुछ नहीं आया, बट वाइफ स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट 6 months बैक, पेन इन हर राइट रीजन एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में। तो माय फैमिली डॉक्टर गॉट अल्ट्रासाउंड डन। अब एब्डोमेन का ऊपर का अल्ट्रासाउंड हुआ, पहले पेल्विक हुआ था, उसमें कुछ नहीं था। अब जब उसमें आया तो वो सस्पिशन आ गया, देन सीटी स्कैन किया, अब सीटी स्कैन भी रिपीट किया फिर, एंड देन ऑफ कोर्स एज यू से रेस्ट इज हिस्ट्री, अब सर्जरी भी हो गई है और वो निकाल दिया है। अभी भी इस बार भी वो क्लीन कट निकल गया है, और अभी भी वही प्रोटोकॉल डिटरमिन किया जा रहा है कि एक सरप्राइज रूल माना जा रहा है कि ये 2 साल में आया है, जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड था इतनी जल्दी आना। मोस्ट इम्पोर्टेंटली नॉट ओनली वो 2 साल में आया है, मगर वो ऐसे एरिया में आया जहां पर भी वो लीस्ट एक्सपेक्टेड था। दैट इज डूइंग ओनली पेल्विक, पेल्विक में एक्सपेक्टेड था कि आएगा तो वो आएगा। अब वो आगे लीवर के का जो लोब है उसके ऊपर, राइट में लीवर लोब के ऊपर के एरिया में वो आ गया। बहरहाल आ गया तो आ गया, लेकिन अब उसकी सर्जरी भी कर दी है, इस बार भी वो क्लीन कट सा है, लेकिन इस बार उसका जो था, जो फ्लूइड निकला इस बारी अबाउट 800 ml निकला, और रप्चर भी हुआ इस बारी। पिछली बार रप्चर नहीं हुआ था, पूरा का पूरा ओवेरियन सिस्ट निकल गया था, 3 लीटर था उसमें फ्लूइड, लेकिन पूरा निकल गया था। इरिस्पेक्टिव, वो सारी स्टोरी की मीनिंग ज्यादा है नहीं, लेकिन मेन बात ये है कि अब नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में अभी भी वही प्रोटोकॉल सजेस्ट किया जा रहा है, जिसको मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, because आपसे सेकंड ओपिनियन ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अवेलिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक सेकंड ओपिनियन फ्रॉम यू, क्योंकि ये करंट है, अभी पिछले हफ्ते ही फॉलो अप मीटिंग हुई है, और पिछले महीने ही सर्जरी हुई है 5 नवंबर को। तो अभी ये है कि उन्होंने वही कहा है, वेट एंड वॉच। मेरे को 2 कंसर्न, एक तो मैंने क्वेश्चन पुट किया था डॉक्टर से कि हम क्या हाइपेक नहीं कर सकते थे इसमें, जब हमने ओरिजिनली भी की थी और अभी भी इस बार भी करी, तो कुड वी नॉट हैव डन हाइपेक टू किल व्हाटएवर वी कुड फाइंड इन द कैविटी। और दूसरा ये था कि क्या हमें कोई कीमो या रेडिएशन इस वक्त नहीं करनी, क्योंकि अब हमें ये तो पता है कि ये मेटास्टाइज हो गया है, राइट। और अभी भी उसको हम कह रहे हैं टेक्निकली कि ये स्लो ग्रोइंग है, मगर स्लो ग्रोइंग होते हुए भी 2 साल में आ गया है। तो दैट इज माय क्वेश्चन टू यू कि इसमें हमें क्या, हमें कुछ वही सेम प्रोटोकॉल, सिट बैक एंड कीप वेट एंड वॉच सर्वेलेंस पे रखें, या कुछ प्रोएक्टिव होकर के रेडिएशन दें, क्योंकि उसका एक इम्प्लीकेशन उसमें भी आई है, डायाफ्राम के अंदर एरिया में भी थोड़ा सा स्क्रैप किया था, डायाफ्राम को पूरा कट नहीं करना पड़ा, थोड़ा स्क्रैपिंग करी, और उसका भी सैंपल पॉजिटिव आया है फॉर ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, व्हिच डॉक्टर सेज कि
एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो सारे एरिया तो टच कर ही रहा है ना। हम्म। तो अब ओके। सवाल यह है कि क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, या वही हमें जो एडवाइस किया है दैट इज गुड इनफ, एंड देन ओके, कीप तो फिंगर्स यहाँ, क्रॉस्ड एंड। ओके, सो यहाँ पे ना मेरे दो क्वेश्चन हैं कि एक तो आप मुझे ये बताइए कि है मतलब आपने क्या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से सेकंड ओपिनियन लिया इसके बारे में आफ्टर सेकंड सर्जरी, नहीं, आपसे ले रहा हूँ, जो ले रहा हूँ सेकंड ओपिनियन। है ना? तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि जब भी देखो, पहली बात मुझे ये नहीं पता कि जब आपकी पहली सर्जरी हुई थी उस टाइम स्टेज क्या था, राइट? बट स्टेज वन ग्रेन था, स्टेज स्टेज वन वन था। था ना, हाँ। तो अगर स्टेज वन था, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर था, तो एक आइडियल सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो कि हुई थी, राइट? उस टाइम वेट एंड वॉच ही करना था, फॉलो अप करना था, जो आपने किया। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बीमारी वापस नहीं आ सकती या कितने सालों के बाद आएगी। मैंने मेरे 15 साल की ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस में स्टेज वन को विद इन 6 मंथ भी रिकरेंस होते हुए देखा है, और स्टेज 4 को 5-5 साल तक भी ठीक होते देखा है। तो इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, नथिंग इज 100%। सेकेंड, क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि लिवर के पास आया है और डायफ्राम जो वॉशिंग हुई है वो पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे अब मेरा सजेशन ये है कि नाउ पेशेंट नीड कीमोथेरेपी, ठीक है? फॉर दैट यू हैव टू टेक सेकंड ओपिनियन फ्रॉम द मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। थर्ड पॉइंट, यू आस्किंग कि क्या हम इस केस में रेडिएशन दे सकते हैं? तो ओवेरियन कैंसर में रेडिएशन का कोई रोल नहीं होता, चाहे वो कोई भी हिस्टोपैथोलॉजी हो, ठीक है? दीज ट्यूमर्स आर कंप्लीटली क्योरेबल विद कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। सर्जरी आपकी हो गई है, मेटास्टेटिक है अब ये, तो कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट आपका था कि क्या हम हाई पैक नहीं कर सकते? तो हाई पैक इस हिस्टोपैथोलॉजी में नहीं किया जाता। हाई पैक एंडोमेट्रियल एक डिफरेंट टाइप के हिस्टोपैथोलॉजी होते हैं उसमें किया जाता है, वो भी उन केसेस में किया जाता है जहां पे एंडो एक ना स्ट्रक्चर होती है ओमेंटम, अगर उसमें डिपॉजिट्स हो और कंफर्म हो, बायोप्सी से कंफर्म हो रखे हो, डिपॉजिट्स हो, उन केसेस में करते हैं। तो इस टाइम जो आइडियल जो चॉइस है वो ये है कि टेक ए सेकंड ओपिनियन फ्रॉम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड स्टार्ट कीमोथेरेपी एज सून एज पॉसिबल। एंड नो डाउट, जब भी बीमारी लौट के आती है वी ट्रीट एग्रेसिवली, एंड सर्जरी ओवेरियन कैंसर में मेन ट्रीटमेंट रहता है, जो कि आपने सेकंड टाइम भी करा ली, आपने बहुत अच्छा किया। बिना देर किए इसको जल्दी से जल्दी पकड़ना होता है, क्योंकि हमें कंफर्म भी करना होता है। नाउ स्टेज इज क्लियर, गो फॉर कीमोथेरेपी, एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एंड जो कीमोथेरेपी है, कोई खास कीमोथेरेपी आप सजेस्ट करेंगे नाम से, या नहीं, और साथ अभी हम में? मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के उसमें एक्चुअली ना हैं। शैलेंद्र जी, ज्यादातर केसेस में ना जो ओवेरियन कैंसर में स्पेशली इस हिस्टोपैथोलॉजी में जो लगता है ना वो बीईपी लगता है, लेकिन कीमोथेरेपी के भी ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जब बीमारी लौट के आती है ना तो पहले से ही सेकंड लाइन पे चले जाते हैं, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है, आपके एडिशनल टेस्ट करा के ये भी असेस किया जाएगा कि आजकल जो टारगेटेड इम्यूनो ये सारी चीजें आ गई हैं, वो ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बीईपी फॉलो करना है या आईज फॉलो करना है। इसके लिए जो आइडियल पर्सन है, एक बिल्कुल कंफर्म डायग्नोसिस देने वाला या बताने वाला है, वो है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि वो आपको डिटेल में हिस्टोपैथोलॉजी रिव्यू करेंगे, पेशेंट की कंडीशन रिव्यू करेंगे, एंड जो सर्जरी की रिपोर्ट आई है वो रिव्यू करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हमें देखने होते हैं इस केस में। थैंक यू वेरी मच, truly appreciate. थैंक यू, It थैंक was यू, it was really very helpful. थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू डॉक्टर रेखा, थैंक्स शैलेंद्र जी। अभी में हमारे पास ऑनलाइन क्वेश्चन नेक्स्ट संतोष जी का है, बट Okay. yeah, I mean, I can ask him. Santosh ji, you can unmute yourself and ask your question. In the meantime, if anyone else wants to ask, please raise your hands and then we can take those questions. Santosh ji, please unmute yourself. I think उनका क्वेश्चन बहुत जेनरिक है, मैं भी बोल सकती हूँ। बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जनरली कैंसर का क्या कारण होता है? अच्छा, डेफिनेटली बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। Santosh is also very active in a group and he has a lot of knowledge about all these. Yeah, Santosh ji, if you want to introduce yourself and ask the questions. Yes, yes, please. Namaskaram. I'm not नमस्कार। audible. ओके, संतोष जी कहाँ से हैं Um, आप?
Which place you belong? I'm from south of India, from Tamil Okay. Nadu. Okay. Uh, I'm sorry that I know very little bit of Hindi, uh, and I'm sorry if I repeat the questions or what you were explaining so far. So No I'm problem. aged now 35. I was stage 4 cancer. I was affected by it, and particularly from colon and then liver and lungs. Then I got recovered with everyone's help. My question is that for the whole thing is that at the early age of 31, I was diagnosed by it, even though I was exercising and I used to take a lot of fruits and vegetables. No, I'm also vegetarian. In this case, I was affected by colon cancer. So, and also not only on me, and I see when I went to hospital, I see very young people were there, and the cases were so much rising. I know our country is producing more doctors, particularly in this field also. So it's happy at one side, but at the same time, the numerous hospitals are coming for cancers. So this indirectly symbolizes that we're getting weak in health side. So I know it's a generic question, and whenever I post this, doctors would reply that it's $1 million question, and still research is going on. I know, and it has so much factors in it, so we cannot pinpoint exactly. But from your observation and experience, I want to know uh, what from your side, how can come the young people have got affected, and what might be the cases or scenarios, or other than the gene or the alcohol or anything induced things. So when people are naturally good and they are teetotalers or something like that, and vegetarian, even though people practice, I saw people with who was practicing yoga and all spiritual things also get affected. So people are good in some ways, but even I see them as patients. I saw, and unfortunately, few people have left. Uh, it also has so much factors, age or what kind of dosage, what stage it is, all these things. I understand it, but I want at least to come to near where it is starting. Prevention is better than cure. So I believe, and also what people do for to come very easily from out of it. Once you get affected, I know, and the treatment is going on, or whatever technology we have, we use, and the latest technology we take, that's a great thing. But better not to go to this. So, because if I in my family I got affected, so I was young and I was able to tolerate everything. But it was, if the scenario is different, if it is was my some other from my family, I do not know how I would have reacted or uh, took it as I did. So so what is your, from your observation and experiences, what people do to come should do to come out of it very easily, or how it is preventable? So, okay. Actually, causes of cancer, it's very most common asked question in my OPD also. When someone suffer from cancer and visit my OPD, they always ask, "Hey, why me? And why this cancer is rising so rapidly nowadays?" Somehow, what I realized over the 15 years in my oncology practice, I realized that now our lifestyle has changed a lot. What we are eating, what we are breathing, what we are inhaling, everything is polluted. Everything is adulterated. And somehow I realized that people are not taking it seriously. And here are two factors. Type of cancer is two types: genetic cancer and acquired cancer. Genetic cancer is only 10 to 15%. And unfortunately, colon cancer comes in that category. It is genetic cancer, and but 70 to 80% cancers are acquired or environmental. We can prevent
getting from this cancer by changing few modifications in our lifestyle, and somehow it's very difficult to maintain that a good lifestyle. So if you compare current lifestyle from 10 to 15 years ago life, nowadays what we are having, everything is like pesticide containing, insecticide containing, nothing is good. And somehow these foods are affecting our DNA. And such change in DNA gene causing rise in cancer. Okay, so what we can do from prevention, there are few tips for prevention from the cancer. First of all, always follow healthy dietary habits. Don't take anything from market or any preservative, any frozen, any those things now which are comes in packet, or that ready-made preparation, like so many things in market, like in can base preservative food, and everything you are having nowadays, that is completely full of carcinogens, right? So and indirectly, somehow we are not aware of these things, we are having in plenty of these things and not physically active, not following those preventive guidelines. We are not focusing our mental health, physical health, not following yoga, meditation. All are additive actually. And somehow few people are taking smoking, doing alcohol, taking alcohol, doing smoking. These are also additive. So somehow 80% our habits are acquired, which we are responsible for that, and 15% are genetic. Colon cancer, rectal cancer, prostate cancer, breast cancer, these all are comes in genetic or hereditary, but rest are acquired. And आजकल हम कुछ भी अच्छा नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए मोर एंड मोर जनरेशन इज अफेक्टिंग. प्रिवेंशन की बात अगर हम करें तो जितना हम अपने आप को अवेयर रख सकते हैं, अपने लाइफ को फिजिकली फिट रख सकते हैं, बाहर का खाना पीना बंद करिए. जो भी ये एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, हम लोगों को इमोशनली इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये सब हमें फूल बना रहे हैं. कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, आज की डेट में हम मार्केट जाते हैं और बीमारियां घर लेकर आ रहे हैं. तो ये सब चीजें खत्म करनी है. यू हैव टू बी कनेक्टेड विद नेचर. नेचुरल चीजें खाओ, नेचर से कनेक्टेड रहो, अवॉइड ऑल काइंड ऑफ द प्रिजर्वेटिव, अवॉइड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, try to take fresh air, but it's very difficult to maintain in Delhi NCR because it is very polluted. And living in Delhi NCR nowadays it is automatically you are consuming 40 to 45 cigarettes in a day. So how can you think you can keep yourself prevented from getting lung cancer? That's why young people are affected more, because they are doing outdoor activities, they are going for job, and they are inhaling that bad air. Recently in my OPD, 26-year-old boy came with lung cancer symptoms, and it was so bad to see young boys suffering from lung cancer. Because lung cancer, breast cancer, some cancers are of old age disease. But nowadays, this age criteria is completely changed because of these habits. So actually, cancer is multifactorial. There are many more factors, and I already uploaded a great video, causes of lung cancer, on my YouTube channel. For detailed information, I will share link in CSI group. You can go on my YouTube channel and watch that video in detail. But these are the basic information, and somehow everyone know what are the causes of cancer and how to keep ourselves prevented. Still, we are unable to keep ourselves safe. Yeah, thank you, Dr. Rekha. I mean, that's what we keep hearing is multifactorial, and we cannot just pinpoint that this might have just caused. Right. And do you also feel like stress भी एक इसमें एक reason रहता है? Yes, somehow, because stress, what does stress do? Stress affect our immunity system. And एक्चुअली जो कैंसर का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ना, वो क्या है, हमारी बॉडी में डेली कैंसर सेल्स बनते हैं, बट हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, उनको किल कर देती है.
तो एक कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे वो कैंसर सेल्स हमारी इम्यूनिटी को एस्केप कर गए, उनसे बच गए, वो अनकंट्रोल वे में ग्रोथ होके कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड व्हाट स्ट्रेस डज, स्ट्रेस अफेक्ट अवर इम्यूनिटी सिस्टम. सो समहाउ वी ऑलवेज से बी स्ट्रेस फ्री. बट आई थिंक कहना बहुत ईजी है बट रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल का हम लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा है ना, हर कोई किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस्ड है. इसीलिए हमेशा अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा प्रेफरेंस दो. ठीक है, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखो, नेचर से कनेक्टेड रहो, जो नेचर प्रोड्यूस कर रही है उसको रॉ लेने की कोशिश करो. फ्रोजन और प्रिजर्वेटिव पे फोकस मत करो. जो भी आपकी डाइट है, फोकस ऑन रेनबो डाइट. मतलब यू हैव टू कीप मल्टीपल टाइप ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड cereals in your diet. So you have to be very smart कि what you are having, what you are feeding your body, because somehow these habits manifest accordingly. So Yeah. I think Savita ji, stress somehow affecting in our immune system and one of the cause of the cancer. Okay, thanks. So next question, Andy Singh ji का है. I'm also pasting. I'm letting him unmute. I mean, Andy ji, आप please unmute करके you can also add on. But I posted his question on the chat. Yeah, thank you, Savita ji. I think I've already posted the question, but if you want me to repeat it, like I can ask it. So, yeah, I will I also think have to let read. let Dr. Rekha read it, and if she has any question, maybe she can Yeah. ask. Yeah. So thanks. this is the report na, endometrial adenocarcinoma. Yes, this was the diagnosis. Yeah, that's right. Okay, so endometrial adenocarcinoma, FIGO grade 2, trans TAH plus BSO, sentinel lymph node biopsy, bilateral pelvic lymph node dissection done August 23. Okay, IGRT 25 sittings completed October 23. Follow up. Oh yes, I got through this question in Facebook chat. Yes. Yes. I have one question. Did you get brachytherapy at that time or not? Actually, what happened was, like, we went to Tata Memorial for the surgery, and Okay. there at first they advised brachytherapy. So, but then there was, like, they said, I will have to go through the report. Sorry. So, yeah, I will just open it. They said, like, in this particular case, there was 50% myometrial invasion along with LVSI focal invasion. So, due to that, they suggested for this external radiations. And we couldn't secure slot over there, so we came back to Delhi, and here we got this thing done, 25 sittings done. So image guided external beam radiation. Right. Yeah. So after that, like, I was expecting something kind of like, patients get, I believe, something chemo plannings and all this. So I was hoping that we'll get something of that sort, like, okay, this is your thing, you have to come and see this doctor at these much intervals, because I had read about all this in all the sheets and all, but we were not given any such thing. So my mother continued seeing the radiation oncologist, and then she was unwell in December, and something it discontinued in severe cold and all. So it somehow discontinued, and from January onwards we had to see the quarterly follow-ups for the gynecological oncologist, and we started doing that. So, but then I read somewhere some patients were saying, like, we are seeing both the doctors, like radiation oncologist and the gynecological oncologist. So I got a bit confused that there was no clarity. Should we see both of them, or should we only continue with the gynecological oncologist, or what? Oh, I'm आप unable to म्यूट hear पे you. हैं डॉक्टर रेखा, म्यूट पे हैं. Okay, got it. So basically, first of all, I just want to know, right now your mom is disease free completely. She is absolutely fine now. Yes.
So Great. this will be our annual checkup in December. So we'll be going for the 3 are already done, and the fourth last one, annual, is in December. Okay. So you didn't mention what was the stage. You mentioned FIGO grade 2. What was the FIGO? Stage 1, 2 Yeah, or what? stage 1B. Stage 1B, right. Stage 1B and grade 2. So basically what happens, main treatment of choice for CA endometrium is the surgery, जो कि आपकी हो गई है, and accordingly histopathology report के according हम radiation और chemotherapy advise करते हैं. जी. So इस केस में EBRT एंड ब्रैकीथेरेपी दोनों बनते हैं, राइट. एंड आज की डेट में आजकल लोग IHC भी कराने लगे हैं एंडोमेट्रियम के केस में, जिसमें P53 वगैरह देखा जाता है. अगर वो पॉजिटिव होता है तो कीमोथेरेपी भी लगती है. बट आपका क्वेश्चन ये है कि हमें फॉलोअप किससे लेना चाहिए, राइट? जी जी. तो फॉलोअप का मैं बताती हूँ. बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉलो अप आप किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट से ले सकते हैं, चाहे आप अपने सर्जन से ले सकते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से ले सकते हैं, या फिर अगर कीमो लगी होती है तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से भी ले सकते हैं. पर्पस ऑफ फॉलो अप इज जस्ट टू चेक पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल. एंड अगर आप सर्जन के पास जाते हैं वो भी वही चेकअप कराएंगे, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो भी वही चेकअप कराएंगे. इट्स योर पर्सनल फेथ एंड पर्सनल इंटरेस्ट टू whom under you want checkup or follow up. जनरली क्योंकि मेन ट्रीटमेंट इज सर्जरी, लोग सर्जन के अंडर ही फॉलो अप लेते हैं. बट अगर आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के भी अंडर फॉलो अप ले रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि सारे ऑन्कोलॉजिस्ट का पर्पस सेम ही होता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस बताने हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे और पेशेंट को असेस करना है. और हमारा जो पर्पस होता है ना फॉलो अप का, बस वो यही होता है कि टू कैच डिजीज एट वेरी अर्ली स्टेज व्हेन इट रिकर और रिलैप्स. तो ये कोई टेंशन या फिर वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन वाली, कि हम किसके अंडर फॉलो अप लें. सबका अपना इंटरेस्ट होता है. जैसे कुछ मेरे पेशेंट्स हैं, ब्रेस्ट के पेशेंट्स हैं, सर्जरी मैंने कराई, वो सर्जन के अंडर फॉलो अप ले रहे होते हैं. कुछ होते हैं जो मेरे अंडर ले रहे होते हैं. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी गाइडलाइन सेम ही होती है फॉलो अप की. बट ये होता है जैसे कभी कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर जैसे कि मॉम को रेडिएशन हुआ, रेडिएशन से रिलेटेड कुछ अगर साइड इफेक्ट आते हैं, तो जर्नली सर्जन उनको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार देख लो, ठीक है. और अगर सर्जरी से रिलेटेड कुछ इश्यू है, कुछ डाउट है, तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट उनको भेज देते हैं. मतलब ऑब्वियसली कैंसर इज ए टीम वर्क, कैंसर ट्रीटमेंट इज ए टीम ट्रीटमेंट. तो हम लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं. बट मेरा जो मेन जो कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि जब भी ट्रीटमेंट हो कैंसर का, कोशिश करो एक ही जगह लिया गया हो, चाहे सर्जरी हो या कीमो हो या रेडिएशन हो, क्योंकि डॉक्टर्स एक दूसरे से उस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जहां उन्हें जरूरत होती है एक दूसरे से ओपिनियन लेते हैं. तो ये आप किसी की भी अंडर फॉलो अप रहिए, वो कोई इश्यू नहीं है. और फॉलो अप का प्रोटोकॉल मैं आपको बता दूं. जी, फॉलो अप का प्रोटोकॉल, हाँ जी, आप बता दीजिए मुझे. ओके. तो जनरली क्या होता है ना, एक तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज है और कौन सा हिस्टोपैथोलॉजी है, क्या कितने एग्रेसिव है. लेकिन ओवरऑल फॉलोअप की गाइडलाइंस होती है, जब भी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देते हैं, पेशेंट इज डिजीज फ्री, हम 3 महीने पे 2 साल तक बुलाते हैं, राइट. और उन्हीं अकॉर्डिंग टू नीड वी एडवाइज इन्वेस्टिगेशंस. फिर अगले 5 साल तक हम पेशेंट को 6 महीने पे बुलाते हैं, ठीक है. फिर जब 5 साल तक व्हेन पेशेंट इज डिजीज फ्री, तो हम ये सोच के चलते हैं कि अब बीमारी लौट के आने के चांसेस बहुत कम है. फिर ऐसी सिचुएशन में अगले 10 साल तक हम पेशेंट को साल में एक बार बुलाते हैं. और अगर ये पेशेंट के 10 साल बिल्कुल सही निकल जाते हैं, तो फिर हम उनको कैंसर फ्री डिक्लेयर कर देते हैं कि अब आपको फॉलो अप भी आने की जरूरत नहीं है. परफेक्ट परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंडी सिंह, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वीरामणि का. आई थिंक वो है शायद वीरामणि जी. आई मीन इफ शी इज नॉट देयर, बेसिकली. Okay, so you can also ask your question. I mean I can see that, but yes. Okay, madam, I am from Chennai. Good evening, Dr. Madam. I am from Chennai, so it will be comfortable for me to talk in English. Yeah. Okay. So my wife got ovarian cancer, stage 3B, actually 2 years back. So we had a surgery. We removed ovaries, uterus, omentum. All those things have been removed, and we had 6 sittings of chemo. So 1.5 years back it was done. So she is now completely all right.
we have been undergoing every 3 months. We are testing all those mandatory tests we are undergoing. My question is whether any possibility of breast getting affected, okay, in future because of this ovarian. The first question. Second one is how it is possible even after removing the ovaries, how it can impact breast. Second question. Third one, my wife did not have any of the symptoms which is normally said about ovarian cancer. We did a test master checkup in 2021. Her ovary was all right. But in 2022, we were seeing 7 centimeters cyst in ovary. So, but we should not have any symptoms, no weight loss, no constipation, or no hungry, no symptoms like that. But how it can, without any symptoms, how it can come? And her CA125 was just 43 when we took that initial test. But it was stage 3B. So these are my questions, madam. Okay. So, yes, first question was, is it possible to be affected with breast cancer after ovarian cancer? So, breast cancer and ovarian cancer, generally it is seen, it is linked with a gene known as the BRCA1 or BRCA2. Generally, when patient is positive for these genes, it is highly suspicion if patient is having breast cancer in future, she may develop ovarian cancer. And right now, if she is having ovarian cancer, she may develop breast cancer in future. So if you want to be tension free, that my wife will develop breast cancer or not, you have to get gene test done known as BRCA1 and BRCA2. Nowadays, genetic testing is very common. You have to consult geneticist, right? Second question is, what was the second question? Right. Even after removal of the ovary, can it impact breast? Yeah, that I explained. Yes, it can impact because it is gene linked. And second question was, you mentioned your question. Third question. No. Just on the plane, I'm asking. A third question is about she did not have any symptoms. Okay, how it developed into stage 3? Yes. So actually, it is not generalized. Every type of cancer will have the same sign and symptoms, right? Ovarian, what happens with ovarian cancer? Ovarian is a pelvic organ. Unless mass or the cyst of the ovary will not compress, adjust and structure, patient will not develop any symptoms. This is the reason generally ovarian cancer is diagnosed with advanced stage. Because when one cell is start dividing, and when it is a 10 to the power 10 billion of cells, it is become of the 1 centimeter size, right? So ovary is pelvic structure, and cancer cells continuously start dividing and make a big large lump, and it start pressing anteriorly and posteriorly and the structures adjacently. Then patient start feeling some symptoms like bloating, pain in abdomen, pelvic pain, some discharge related symptoms. So it is not mandatory that patient will develop weight loss or patient will develop bleeding, patient will develop breathlessness. It is completely different thing. It depends on the what type of the cancer she is having. And generally, ovarian cancer initially diagnosed in very early stage because of the incidental diagnosis or incidental ultrasound. When you get some ultrasound for something else and doctor is telling there is a cyst in the ovary. But generally, ovarian cancer is diagnosed in advanced stage because of this reason. Until unless it will not press another structure, patient will not face any symptoms. That's why you didn't diagnose this diagnosis at very early stage. Until then, it converted into the 3B. Okay. Every cancer has different for this ovarian cancer. Yeah, but because of the area develops. Any reason for this ovarian cancer, madam? What is the cause for this ovarian cancer? Because other cancer we can understand, lung cancer or other cancers, but ovarian cancer, what is that root cause? Actually, other can see if the any organ is having cancer and it start affecting its function,
right? Then patient is worried कि okay, something is wrong, we have to get checkup done. But in ovarian function, you can't detect its function normally until unless the patient is having abdominal pain or pressing adjacent structures, because you can't see visibly. But in case of the lung, mouth cancer, you can easily check. In case of the breast cancer, you easily feel there is a lump in breast. So this is the main reason why abdominal and the pelvic malignancy diagnosed in advanced stage, because there is no abrupt symptoms of those organs. But in lung cancer, patient start suffering breathlessness, patient start suffering from cough. So these are the reason. Early the symptoms, early the diagnosis. Got it? Okay, ma'am. Okay. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am But curious. but Sorry. Okay. Actually, we are short of time, so No, I would be I'm just just curious to know quickly because I am also ovarian cancer case. So I'm just wondering what was the ovarian cancer in Vira's case? Was it adenocarcinoma, or was it, in my case, it was my wife's case, it was granulosa cell tumor, adenocarcinoma, sir. adenocarcinoma. And how Serous adenocarcinoma. and how old was she? She's How old? 46. She's 46. 40, One thing, 46. a follow-up question, Dr. Rekha. Yes. In my wife's Rekha, case, about 10 years back, her hysterectomy was done. Okay. And at that time, she was fairly young. She was about 46 years old or 45 years old. And so they advised to keep the ovaries. Now, another doctor in India, whom I had consulted at that time as a second opinion, as you said, had recommended to remove the ovaries at that time. Oh, hindsight is 2020. Now I'm regretting. Oh, do you think it is a better thing if any hysterectomy is being done for whatever reason at the age of 45, 46? And once you are doing it, is it a good practice to remove the ovaries at that time? I just want to know why hysterectomy was done at that time. I think she had fibroid. Fibroid, yes. So at that time, diagnosis was fibroid, and it is not recommended to remove ovary along with hysterectomy until unless patient is having something problem related to the ovary. Generally, surgeons or gynecologists don't remove, because ovary have very great function. It is a estrogen hormone producing organ, and it is enormously impact on our mental health as well. Estrogen hormone. So generally, when there is a fibrose or any other benign condition in the uterus, generally we don't remove, or we don't advise to remove ovaries along with uterus. So at the time, surgery was done correctly. And second thing, endometrial malignancy mostly is adenocarcinoma, but ovarian cancer could be germ cell tumor like granulosa cell tumor and other histopathology also. So both things are completely different, not linked with each other. So like it could not have been avoided if we would have removed ovary at that time, even if although you're saying is no, it should not be removed at that time because it was not indicated. not Yeah, indicated. okay, let's move forward with the okay, next yes. question. Yeah, because doctor, we have two more questions, and please, that's what I was requesting. Be mindful, others also have their questions. So, Dr. Rekha, do you mind if we can take two more questions, because I'm Yeah. getting okay. Definitely, definitely go for it. Okay, Neha, please unmute और आप अपना question पूछ लो. हेलो नमस्ते मैम. नमस्ते. मैम मुझे 2016 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था एंड 2020 में मुझे रिकर्ड हो गया था ओवरीज में. जब से मैं कैटजिला मेंटेनेंस लाइक वो टारगेटेड थेरेपी पे हूँ कैटजिला पे. अभी मुझे 2 साल पहले 1.5 से 2 साल पहले मुझे हर्निया का इशू हो गया है. तो अभी जब से मतलब डॉक्टर्स ने मैं टाटा में फॉलोअप के लिए जाती हूँ बॉम्बे. तो अभी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता का भी यही कहना है कि अभी उसको हमें टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है जब तक वो हर्ट ना करे. बट अभी लास्ट मेरा जब सोनो हुआ था सोनोग्राफी, तो उसमें मुझे आई थिंक याद नहीं है 8 सेंटीमीटर का था मुझे इंसिजनल हर्निया. अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब बेल्ट लगाना पड़ता है मुझे, और थोड़ा सा एसिडिटी प्रॉब्लम भी मुझे हो गया है. तो अभी नेक्स्ट मंथ मेरा पेट सिटी है
ड्यू, हम्म वो मुझे हम्म करवाना है। हम्म तभी अभी मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा है कि अभी देखते हैं, अभी एक बार पेट सिटी हो जाए। बट मुझे एक आपसे क्वेश्चन मेरा ये था कि हम्म मैं जैसे 4th स्टेज कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो हम्म ये ऑलरेडी मेरी मतलब सर्जरी 5 सर्जरी हो चुकी है, मतलब पहले भी हम्म ऑलरेडी। तो ये सर्जरी और होना, मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक मेरा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि ये सर्जरी अगर होती है तो हम्म इसके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, या मतलब ऐसे हो जाता है कि अगर आप लाइक कैंसर फ्री हैं हम्म तो कोई ओके प्रॉब्लम नहीं होगी। so you want to get it repair your incisional hernia, right? जी But currently you are on active treatment. जी नहीं, तो at that time it is not advisable to undergo for any surgeries which is not harming or not alarming, right? ओके If ओके you can manage it conservatively, please do it, because you are already on a active treatment and you are हम्म breast and ovarian cancer patients. So generally what happens when we will do surgery to repair it, somehow it may not heal, right? So हम्म these are ओके the things which surgeons generally avoid, because at that time ओके during the active treatment of the cancer, body immunity is not good, and incisional hernia repair needs a big surgery, no doubt. People do nowadays with lap or robotics, but that are ओके totally different. But it is my suggestion also, don't undergo this surgery during active treatment, ओके right? ठीक है, थैंक यू सो When मच। your PET CT will be disease free and you will be in follow up, or you will be cancer free in subsequent years, you हम्म can plan surgery at that time, but not right now. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। And one more thing, because right now you are on a treatment for the ovarian cancer, and it is a pelvic organ and it is very fragile. Generally we don't touch that area which is adjacent to the cancer part. ओके, बट मैं अभी कैंसर फ्री हूँ लाइक 2021 से ही। नहीं, still if you are ओके on a ओके active treatment, avoid such surgeries. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. Next question we have is from Piyush. So Piyush, please ask your question. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hi Piyush here. Piyush ji, hi. हेलो। मेरे मामा को फरवरी 2024 मतलब दिस ईयर में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। Okay. और एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस इट वाज मतलब 3rd स्टेज विद द हेल्प ऑफ पेट सीटी स्कैन एंड बायोप्सी। सो डॉक्टर स्टार्टेड न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। Okay. So we took 6 cycle of neoadjuvant chemotherapy, then surgery. And the Hmm. post surgery, this specimen biopsy was in situ, ductal carcinoma in situ, and no nodes were involved in that time. So the Okay. response of the neoadjuvant chemotherapy was really very fine. Okay. So after that, doctor were thinking that whether we should go for radiation or not, because now So Piyush ji is I think he's पीयूष जी का नेटवर्क का शायद इशू है, network बट जहाँ issue. तक या विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स, बट जहाँ तक मुझे लगता है उनकी मदर के रेडिएशंस हुए थे एज एज मच months एज। back. हाँ पीयूष जी, अभी आप बोलिए या फिर आप टाइप कर दीजिए। पीयूष जी, आपका क्वेश्चन अधूरा रह गया। तो जितना मुझे समझ आया, आप बेसिकली Okay. जानना चाहते हैं कि तो रेडिएशन दो कराना है नहीं कराना है। नहीं, रेडिएशन भी हो गया, Okay. रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया, रेडिएशन हो गया। हम्म अभी सी इज फाइन, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि रेडिएशन साइड पे बर्निंग का हम्म प्रॉब्लम रहता है, और कभी कभार और पैक्लिडेक्सेल भी दिया हुआ है, तो मतलब पैर में भी मतलब जलन का प्रॉब्लम रहता है। हम्म तो लास्ट अभी 1 महीने पहले फॉलोअप में सर्जन से और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट दोनों से मिले थे, तो सर्जन ने भी ये बताया कि मतलब ऑपरेटिव साइड पे जो पेन है दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, और अच्छा। कुछ है नहीं। तो ओके, तो उसके मैं ये बाद जानना एक्चुअली हम चाहती हूँ कि रेडिएशन के हुए कितना टाइम हो गया? रेडिएशन 2 महीने हुए, 2.5 months।
2.5 months. और And हम डॉक्टर second, को 1 महीने पहले मिले थे, 1 महीने पहले मिले थे, तब उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट ये 1.5 महीना हुआ है, तो रेडिएशन की वजह से बर्निंग वगैरह रह सकता है, okay. बट इट स्टिल देयर, बर्निंग रहता है और कंटिन्यूअस नहीं रहता, कभी कभार नाइट टाइम में ज्यादा होता है, ये सब रहता है। तो उसको कैसे करें, मतलब वी शुड गो अगेन विद द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन, और वी शुड वेट फॉर दैट? ओके, तो आप मुझे एक बात ये भी बताइए कि MRM हुआ था या BCS हुआ था? पूरी ब्रेस्ट हटाई गई है या थोड़ी ब्रेस्ट हटाई गई है? फुल फुल टोटल मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टमी हुआ है। ओके, हाँ, तो पहली बात तो ये है कि जो पोस्ट ऑप साइट होता है ना, वो जो माताजी कंप्लेन कर रही है ना, दैट इज वेरी कॉमन। अक्सर मेरे ओके, पास पेशेंट आते हैं कि मैम मेरे को ना यहाँ पे जलन है, एक अजीब सी इरिटेशन हो रखी है, झंझनाहट होती है। तो ये कॉमन है। दूसरी चीज, क्योंकि अभी 2 ही महीने रेडिएशन के लिए हुए हैं, तो यू हैव टू वेट टिल 12 वीक्स। थर्ड थर्ड पॉइंट, कि अभी आप उस रेडिएशन वाली जगह पर एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल ज्यादा सजेस्टेड है, उससे उनको सूदिंग इफेक्ट आएगा। थर्ड पॉइंट, उनको एक्सरसाइज जरूर करानी है। वो ओके, सी कर इज रही डूइंग है। रेगुलरली। हाँ, हाँ, रेगुलरली वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवर द टाइम जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करती जाएंगी, टाइम बीतेगा, ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती चली जाएंगी। तो यू हैव टू वेट 1 more month। एंड जनरली 12 वीक्स के बाद अगर ये रेडिएशन इंड्यूस्ड भी है ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट इट इज वेरी कॉमन, मोस्टली पेशेंट मेरे कंप्लेन करते हैं, खासकर MRM वाले, जिनकी पूरी ब्रेस्ट हटाई जाती है, क्योंकि जब सर्जरी करते हैं, ब्रेस्ट हटाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी फाइन नर्व्स भी कट होती हैं, तो उनकी वजह से वो सारे इश्यूज होते हैं। एंड आपकी मदर का पैक्लिटैक्सेल लगा है, पैक्लिटैक्सेल न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक है? तो जब नेक्स्ट विजिट में आप जाएंगे, आप नर्व स्ट्रेंथनिंग एजेंट्स एडवाइस करा लेना डॉक्टर से, उससे उनको हेल्प होगा। डायबिटीज वगैरह तो नहीं है? डायबिटीज है, लेकिन अंडर कंट्रोल, मतलब मेडिकेशन से ठीक रहता है। ठीक है, तो एक तो उस पे भी आपको क्लोज आई रखना है। दूसरा, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है वो करिए, और वेट एंड वॉच भी करिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रेखा, इतना सारा टाइम देने के लिए। आई नो वी हैव शॉर्ट अप बिट, लेकिन वी हैड क्वेश्चंस एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि एवरीवन गेट देयर ओन चांस टू क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स। आई मीन ऑफ कोर्स दिस इज नेवर एंडिंग। आई थिंक एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन और ये आते ही रहते हैं, बट स्टिल आई थिंक वी डिड अ गुड जॉब। मोस्टली हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर कर लिए सबके। So before this closing formally, मैं एक बार screen share करके I will just share the certificate as a token of appreciation for today, and then I will let anybody else to comment, and I'm pretty sure मेरे कुछ कहना चाह रहे हैं, but I'll just wait and पहले मैं अपना screen share कर लेती हूँ, and let me know when you can see the screen, and I'll send it to you, Dr. Rekha. I hope you can see the screen. Yes. Yeah, so we have the certificate for you. I mean, ज़्यादा कुछ नहीं है, but we are very thankful and we acknowledge the efforts and the time you have given to this group. Thank you so much, and I'll hand over to Mehul. I think he wants to say something. Yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you, Dr. Rekha, for coming on and your time. And I want to request all the people who are going to listen to this video and who are there, don't reach out directly to Dr. Rekha. उनको मत disturb कीजिए, because it is very overwhelming. She is very kind enough to answer all the questions. But if you have questions, and if you're in the CSI group, please put them in the chat below the poster that is there, and I will not tag any of the admins. We will reach out to Dr. Rekha, let her know, and we can go forward from there. And Rekha, we'll ask Dr. Rekha to keep coming, whenever she can, so that we can, get more questions and take more help from her. So please don't reach out to her directly. Ask your questions in the chat, and let her let her enjoy her off days. And also, again, thank you, Dr. Rekha, so much, and thank you everyone for joining. Very थैंक grateful यू for सो everyone. मच मेहुल जी, मोस्ट वेलकम। जब भी कभी भी किसी को मेरी मतलब लाइक मेरी हेल्प की जरूरत है या फिर मुझसे सजेशन की जरूरत है, मोस्ट वेलकम। एंड आई ऑल्सो फील वेरी प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ द CSI ग्रुप, एंड आई ऑलवेज से थैंक्स मेहुल जी एंड सविता जी एंड पीयूष जी, थैंक यू सो मच। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि somehow I am helping to someone
अगर आपको कभी भी फ्यूचर में कभी भी किसी तरह के अवेयरनेस सेशन की किसी की भी जरूरत है तो आई एम ऑलवेज हियर। हाँ, Right, हम लोग भी definitely. थोड़ा आराम से बार बार maybe we might become shameless also and we can keep reaching out. No, but we'll make sure कि हम लोग इसको misuse ना करें. We'll be very mindful and नहीं, and thank you. yeah, and I would like Dr. Rekha एकदम हमारे मतलब घर के से we don't think like when we don't hesitate to reach out to her. So, but I know that should not be the way going forward. We should be very mindful about all this नहीं नहीं, time. ऐसा But I would बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, but I would also देवल जी, recommend. यू आर वेलकम एनी टाइम। मैं तो जब इंडिया आऊंगा तो आपके घर आने वाला हूँ पक्का, ये तो It yeah. will be my pleasure. Please come. Yeah, sure. But I would also like to recommend all the viewers to watch Dr. Rekha's YouTube channel. Very informative. If you have any questions, post a comment there. I'm sure she responds back whenever she can. So do go to her channel. I'm sure she'll post a link about some videos in our chat. Very informative. And again, thank you everybody for not taking much of Dr. Rekha's time. Yeah. आई थिंक शैलेन जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं एक फॉलो अप क्वेश्चन नेहा के और वीरा के फॉलो अप में है ये, क्योंकि हाँ आपने बताया था वीरा के केस में कि अगर ब्रेस्ट है तो ओवेरियन हो सकता है, ब्रेका 1 ब्रेका 2 का। अभी नेहा का वही आ गया कि नेहा हैड ब्रेस्ट एंड देन शी गॉट ओवेरियन। ओके, डिड आई गेट इट राइट फ्रॉम हर नेहा? जी जी जी। तो ये आपके केस में भी ब्रेका आपने टेस्ट किया था जो ब्रेस्ट के बाद आपने टेस्टिंग करवाई थी जेनेटिक? जी करवाई थी, नेगेटिव आई थी मेरी। और फिर भी हो गया? जी नहीं, आपने दोनों कराए थे, ब्रेका 1 ब्रेका 2? मैम मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि 2019-20 की बात है ये। ओके, आई थिंक क्योंकि जर्नली ना ये गाइडलाइंस हैं, ये हमारे पेपर्स हैं, जेनेटिक्स में प्रॉपर रिसर्च हुई है कि अगर किसी का ब्रेका 1 है, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, तो फ्यूचर में 40 to 60% चांसेस हैं ओवेरियन डेवलप होने के। इसीलिए उन केसेस में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ क्लोज करने से पहले सेशन को, कि ब्रेस्ट कैंसर नाउ इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, राइट? इंडिया में आज की डेट में ये मोस्ट कॉमन कैंसर हो चुका है फीमेल्स में। तो आजकल ना जेनेटिक टेस्टिंग का बहुत रोल आ गया है। तो जिन केसेस में जैसे कोई पेशेंट आया हमारे पास, हमने ब्रेस्ट कैंसर के लिए वर्कअप कराया, स्टेजिंग वगैरह की सब कुछ कंफर्म हो गया, तो कुछ लोगों में जो यंग है, लेस देन 40 इयर्स फीमेल है, लाइक 30 या 32 35, तो उनमें ना हम जेनेटिक टेस्टिंग रेगुलर करा रहे हैं। और जिनमें ब्रेका 1 ब्रेका 2 पॉजिटिव आ रहा है ना, उनका ब्रेस्ट की सर्जरी के साथ ही ओवरीज भी रिमूव कर रहे हैं। ये हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर मैम सॉरी कंसर्न टू पे। इंटरप्ट, मुझे एक्चुअली ल्यूप्रॉन पे रखा था लाइक 2.5 मतलब एग्जैक्टली 2016 में मुझे जब कैंसर डायग्नोज हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद मुझे हर्सेप्टिन भी चला था 17, उसका भी मेंटेनेंस, और मैं ल्यूप्रॉन इंजेक्शन पे थी एवरी 3 मंथ्स में मुझे लगता था। तो ये जैसे ही मेरा, क्योंकि उस टाइम मेरी एक्चुअली वही है कि जो होना है वो होगा, बट मेरा भी थोड़ा सा गलती ये था कि मैंने दूसरे डॉक्टर की एडवाइस नहीं ली थी फर्स्ट टाइम में। मुझे ये जरूर, जैसे अभी मैं रिसेंटली, जैसे आप मुझे बता रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है कि जब आप जोलाडेक्स पे हैं तो या तो आप ओवरीज रिमूव करवाइए या फिर आप जोलाडेक्स कंटिन्यू करिए। बट राइट, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं ल्यूप्रॉन जैसे ही मेरा बंद हुआ है, विद इन 9 मंथ्स में मुझे ओवरीज में आ गया था, क्योंकि अब मुझे डॉक्टर ने फ्री कर दिया था कि आपको अभी ल्यूप्रॉन भी लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी मैं जैसे रिसेंटली सुनती हूँ तो मुझे ऐसा सुनने में आता है कि या तो आप इंजेक्शन लेते रहिए सप्रेशन के, ओवरी सप्रेशन के, या फिर आप ओवरीज रिमूव करवाइए। मेरे दोनों बंद थे। नहीं 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 नहीं, आप नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ओवरी इसलिए अच्छा, नहीं रिमूव कराई जाती है कि ओवेरियन कैंसर होगा, राइट? ओके ब्रेस्ट ओके, कैंसर में जो लोग ER/BR पॉजिटिव होते हैं, हम उनमें ओवेरियन सप्रेशन देते हैं, या तो उनका 5 से अच्छा 10 साल ओके के लिए ओके टैबलेट चलाते हैं, या सर्जरी करके रिमूव करा देते हैं ओवरीज को, या फिर कुछ इंजेक्शन लगाते हैं ओवेरियन फंक्शन को सप्रेस करने के लिए। ओके उसका आपका ओवेरियन कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, वो ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट का पार्ट है। बट जी मैंने जैसे कि बताया कि सिंक्रोनस मैलिग्नेंसीज भी होती हैं, मेटाक्रोनस मैलिग्नेंसीज भी होती हैं, डुअल मैलिग्नेंसीज भी होती हैं। मतलब एक पेशेंट को एक हुई, कुछ सालों के बाद दूसरी हो सकती है, राइट? एक ही साथ 2 जगह हो सकती है। दिस इज वेरी कॉमन। बट ये उनमें कॉमन है जिनमें कुछ कैंसर कॉजिंग जीन पॉजिटिव हो। और जितना रिसर्च हुई है उसमें ये देखा गया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स होते हैं, अगर उनमें ब्रेका 1 ब्रेका 2 पॉजिटिव है, तो ओवेरियन कैंसर फ्यूचर में 40 to 60% केसेस में होता ही है। तो आपके केस में कहीं ना कहीं वो लिंक है
बट अभी तक आपका जो ट्रीटमेंट हुआ दैट इज ओके, और वो ओवरी कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगाया जा रहा था आपको इंजेक्शन, वो ब्रेस्ट कैंसर ना हो दोबारा इसलिए लगाया जा रहा था। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो मेरी वाइफ का भी ब्रेका टेस्ट हुआ था, नेगेटिव आया था आफ्टर द ओवेरियन कैंसर। तो उनको, और वैसे मैमोग्राम भी नेगेटिव आया है, उसके बाद किया है मैमोग्राम भी। तो क्या अभी भी हमें उसका कोई अप्रहेंशन होना चाहिए ब्रेस्ट का, और उसके लिए नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर BRCA1 BRCA2 नेगेटिव है ना, देन नो नीड ऑफ वरी, क्योंकि उनका पॉजिटिव होना 40 to 60% चांसेस बढ़ाता है, नेगेटिव होना तो एब्सोल्युटली फाइन। पर नेहा का भी नेगेटिव था टेस्ट, नेहा बता रही है। नहीं, शी इज नॉट 100% श्योर। ओके। बाकी नेहा, अगर कभी भी कुछ भी लगता है ना, तो आप CSI ग्रुप में मेहुल जी के थ्रू मुझे आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है फ्यूचर में कुछ भी, या शैलेश जी आपको भी कभी कुछ लगता है, वी कैन कनेक्ट ओवर मैसेज। या इसीलिए फॉलोअप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ जो मुझे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव के शैलेंद्र जी, बेनिफिट। sorry, not being rude, लेकिन let's stop it here. You can post the question in the chat, because you know exactly. there is काफी टाइम हो रहा है, and we would not like to hold Dr. Rekha for a longer period, because as I said, these are questions which can, never ending, एक से एक निकलेगा. So let's make a hard stop here now, and we can be in touch through post, and you can post your questions. ठीक है. So we'll be ending today. Thank you everyone. Thank you so much again, Dr. Rekha. Thank you so much. Good night everyone. Thank you very much. Really appreciate it.